बॉलीवुड की महकती धराओं में कहानियों का आलम है, संगीत की चादर, शब्दों की आवाज़, सुरों की लहरों में बसता है एक जहां अनगिनत किस्सों की झिलमिल धारा. The triumvirate of poetry, music, and storytelling that has breathed life into the captivating world of Bollywood, a world where emotions are not just felt but sung, where tales are woven with the delicate threads of verses, and where melodies become the heart of the narratives. So, in the vibrant tapestry of Bollywood, where tales of love, courage, and human spirit intertwine, two remarkable individuals have graced us with their talents, crafting unforgettable stories and melodies that resonate with generations past and present. Where tales find voice in melody's embrace, a symphony of artistry takes its place. In the spotlight today, luminaries shine, narratives and music forever entwined. So I have the honor of engaging illustrious Mr. Rahul Ravel, a seasoned filmmaker whose canvas is adorned with cinematic gems that have woven themselves into the tapestry of Bollywood. From Love Story to Betab and beyond, his directorial brilliance has showcased the intricate interplay of poetry, music, and storytelling, giving life to characters that speak through melodies and dialogues, leaving an indelible mark on our heart. And I have also the honor of engaging Mr. Yatendra Mishra, a multifaceted personality, a poet, editor, music and cinema scholar whose words resonate with the emotions of human experience. His literary prowess spans through poignant verses of scholarly explorations of melodies and narratives that define our cinematic culture. Mr. Mishra's unique perspective has traversed the intricate pathway of the lives that have shaped our musical heritage. Through his words, these musical luminaries come alive once more, sharing their journeys, their struggles, and their melodies that have touched the heart across the generations. So I start with you, Rahul sir. Love Story is remembered for its iconic music. How do you collaborate with the music composers to ensure that the songs enhance the emotional depth of the story? Let me start with this, that we're talking about a film which was made about 30 years back. Right. I think today the words lyrics and melody don't exist. I don't think anybody, I don't hear any lyrics and I don't hear melody. All I hear is a cacophony of sounds, which drive me crazy. And lyrics is Gandhi Bar lyrics. I think anybody can write that kind of stuff. See, the times of Love Story and all were done by people who cherished their work, who worshipped their work. Where you had Yaad Aa Rahi Hai, Mujhe Yaad Aa Rahi Hai. That was brilliant. Then you had the music for that, which was done brilliantly. Today, I don't know if Bakshi Sahab and Pancham were there and they heard Gandhi Bar. I knew one other music lyricist, जो मिले थे मुझे at a function, and he said, आपने सुना है गाना गंदी बात? मैंने कहा सुना. बोला मुझे तो लगा था मैं यही खुदकुशी कर लूँ कि ये गाने बने हैं. And Yatendra ji, of course, has much more to say than these kinds of things. Yatendra ji, आपका क्या? धन्यवाद सर, आपने अपनी बात आगे बढ़ाने का मौका दिया. लव स्टोरी हो, बेताब हो, अर्जुन हो और आपकी फिल्मों के साथ साथ आर डी बर्मन की यात्रा बहुत ही शानदार है. उसे मेरे जैसा आदमी एंडोर्स नहीं कर सकता, उसको फॉलो कर सकता है.
और बहुत एक दौर था जब म्यूज़िक पे काम होता था, प्रैक्टिस रिहर्सल होते थे, एक एक वर्ड के लिए लिरिसिस्ट बैठता था। शैलेंद्र और साहिल लुधियानवी तक बैठते थे अगर लता मंगेशकर की रिकॉर्डिंग है, क्योंकि उनको ऑब्जेक्शन हो जाता था कि ये शब्द सही वजन का या सही मायने का नहीं है तो बदल देते थे, जबकि ये मशहूर था कि साहिर साहब अपने गाने बदलते नहीं थे। तो जिस दौर की आप बात कर रहे हैं वो साधना का युग था। अभी बहुत 2 मिनट इंस्टेंट कॉफ़ी का, 2 मिनट मैगी वाला युग है। तो म्यूज़िक भी बदलेगा। तो मुझे लगता है कि एक ये सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव में भी म्यूज़िक की जर्नी को देखना चाहिए कि आज हम जिस दौर में हैं कि 2-3 सेकंड के अंदर हम अपने फ़ोन और टीवी को स्क्रॉल कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, कहीं ठहरते नहीं। तो गाना तेरी याद आ रही है या जाऊँ कहाँ बताए दिल या सहगल साहब को हम याद करें तो नॉस्टैल्जिक होंगे और दुखी होंगे। तो इसमें से कुछ अच्छा निकल रहा होगा तो उसको याद कर सकते हैं। लेकिन ये सही है कि मेलोडी 80s के बाद तो बहुत ख़त्म हुई। यतेंद्र जी, आपके लिए आपकी पुस्तक लता सुर गाथा लता मंगेशकर की संगीत यात्रा में डूबने के बारे में है। तो कृपया हमें बताइए कि उनकी धुनों में कैसे उनके संगीत की कहानियों में गहराई बॉलीवुड में एक इम्पैक्ट क्रिएट करता था। देखिए, लता जी का जो मामला है वो एक तरीके से हम टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ सकते हैं। और लता जी ही नहीं, रफ़ी साहब, आशा जी, शमशाद बेगम, गीता दत्त, किसी के बारे में जाएं। 60s का जो दौर है, 50s का जो दौर है, जो अर्ली फिल्म म्यूज़िक मेकिंग का दौर है, उस समय ये देखने की बात है कि किस तरह का काम हो रहा था। ऑर्केस्ट्रेशन का जब काम होता था, मल्टी चैनल टेक्निक नहीं थी। एक गाना, एक म्यूज़िक के पन पे रुकने के लिए सारे जितने भी ऑर्केस्ट्रेशन के लोग थे सब साथ में प्रैक्टिस करते थे। गायिका गाती थी, सब मीटर में, सब ताल में होना होता था। और फिर राग बेस सॉन्ग होते थे। तो सारे कंपोजिशर जो जितने भी हैं, आप आसाम में चले जाएं, बंगाल, सब इन्फ्लुएंसेस लेके आए थे। एस डी बर्मन, अनिल विश्वास, आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन, सलिल चौधरी। तो सबके अपने लोकेल की म्यूज़िक, उनके म्यूज़िक, उसका अपना एक स्टाइल था। ड्रमिंग था, परकशन था, कितना कम और कितना ज़्यादा इस्तेमाल होना है ये सब कुछ बहुत ठीक से एक लेज़र पीरियड मिलता था, बहुत अवकाश के साथ, बहुत मेहनत के साथ। और ख़ुद जो प्लेबैक सिंगर्स होते थे वो सेटिस्फाई नहीं होते थे, वो कई बार टेक देते थे। और कई बार नौशाद साहब ने अपने उसमें कहा है कि ये पिक करना मुश्किल होता था कि रफ़ी का कौन सा नंबर हम यूज़ करें फाइनल ट्रैक के लिए और कौन सा रिजेक्ट कर दें, क्योंकि हर गाना परफेक्ट होता था। तो जिस दौर की आप बात कर रही हैं, लता मंगेशकर की बात कर रही हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। आज उसके ईडियम को, उसके ग्रामर को, उसके नुएंसेस को पकड़ने की ज़रूरत है। आज जो गाना सीख रहे हैं या जो गा रहे हैं, गाना गा लेना, कमर्शियली सक्सेस हो जाना, चार्ट बस्टर पे नंबर आ जाना कुछ दिनों के लिए, वो ठीक है, वो आपका कमर्शियल सक्सेस हो सकता है, लेकिन वो लास्टिंग होगा, वो 50 साल बाद भी गुनगुनाया जाएगा या उसके रीमेक वर्जन बन सकते हैं। इसके लिए अपने पुराने लोगों को सुनने की ज़रूरत है और वर्ड्स के साथ कैसे डील करना, लैंग्वेज जानने की ज़रूरत है। लता मंगेशकर ने जब गाया है तो आप उर्दू के अल्फाज देख लीजिए कि उसमें नुक्ते का काम, कहाँ किस शब्द पे कितना प्रेशर डाला है। और जब आप माइक्रोटोन्स पे काम करते हैं, जब आप माइक के सामने बोलते हैं, गाते हैं, कौन से शब्द को किस बारीकी से रखना है कि वो उतना ही सॉफ्ट, उतने ही खूबसूरत ढंग से जाए और उसका थ्रो बहुत अच्छा हो। ये मुझे लगता है कि ये सीखने की चीज़ है, इसको कल्टीवेट करने की चीज़ है। साधना से आती है, मेहनत से आती है और अपने फ़न में डूबने से आती है। इससे नहीं आती है कि आज मुझे 2 गाने मिले हैं, कल मुझे चेन्नई में रिकॉर्डिंग करनी है, परसों मुझे बॉम्बे में जाकर रिकॉर्डिंग करनी है। तो और मैं आज भी बहुत लोग बहुत अच्छा गा रहे हैं। श्रेया घोषाल बहुत अच्छा गा रही हैं, अरिजीत सिंह की आवाज़ आप अलग से पकड़ लेते हैं, अलका सरावगी पिछले दौर में अगर हम देखें, कविता कृष्णमूर्ति और अलका याग्निक बहुत फैंटास्टिक सिंगर्स रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कलाकार नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास म्यूज़िक कंपोजर्स नहीं है। मेरे एक मित्र हैं म्यूज़िक डायरेक्टर, नाम नहीं लूँगा, मैंने उनसे पूछा कि आप इतने टैलेंटेड हो, गाने इतने चालू क्यों बनते हैं? उन्होंने कहा, यतीन्द्र, मुझसे कहा जाता है कि ये जो गाना आप बना रहे हैं इसके लिए कुछ ऐसी साउंड तैयार करनी है कि सारे जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं
वो अपने रिंगटोन्स के लिए इसका म्यूज़िक यूज़ कर सके। तो जब आप रिंगटोन बेचने के लिए आ गए हैं तो फिर आप गाना अमर होगा और रसिक बल्मा बना पाएंगे। जिस समय बनाया जा रहा था, शंकर जयकिशन म्यूज़िक कंपोज कर रहे थे, तो उनको कभी नहीं पता था कि कभी रिंगटोन का ज़माना आएगा, कभी कुछ ये भी होगा। तो अभी बहुत सारा काम हो रहा है, हमें कमर्शियल वायबल बनाना है, और कमर्शियली सब सक्सेस हो जाती है। कोई एल्बम पिट जाए या कोई म्यूज़िक डायरेक्टर फ्लॉप हो जाए, ऐसा आज के चलन में नहीं है। तो जब आप रिंगटोन करते चल रहे हैं, टेक अवे का एक चला है ना चलन, आपके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खा सके। आपने गाड़ी से टेक अवे में उठाया, उसमें भी पहले फ़ोन कर दिया, इतना समय नहीं है कि आप अपना पास्ता पिज़्ज़ा बर्गर उठा सके। तो सब कुछ टेक अवे है, तो गाना भी टेक अवे है, आया और गया, उसकी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो गई है। मुझे याद नहीं पड़ता आप में से किसी को 4 महीने पुराने कोई गाने याद हो जो आप आज गुनगुनाना चाहें। लेकिन अगर आपका टैक्सी ड्राइवर भी कोई गाना बजा देता है और किशोर कुमार की आवाज़ आ जाती है, तो आप उसके साथ हम करने लगते हैं और सारे एक के बाद एक दूसरी तीसरी लाइनें खुलती चली जाती हैं। तो मुझे लगता है कि जो उसके पीछे का मार्केट है, जो उसके पीछे के आज के कोनोटेशंस हैं, जो दबाव है, उसको भी देखना चाहिए। सिर्फ ये इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज लता जी को गाना होता तो शायद उनको समस्या होती, उनको प्रॉब्लम होती। और जो रवेल साहब कह रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ कि म्यूज़िक को लेके जो उसकी सेंसिबिलिटी है, जो शब्दों को समझने की बात है, किस सिचुएशन का गाना है उसको समझने की बात है, वो ख़त्म हो गई है। पहले की फिल्मों में एक सैड सॉन्ग होता था, एक भजन होता था, एक कवाली होती थी, एक लव डुएट होता था। अब काहे का लव डुएट, अब सब कुछ चैटिंग से दिखा दिया जाता है। तो अब गाने दिखाए जाते थे कि हीरो हीरोइन की मुलाकात हो रही है, 4 कपड़े बदले, 4 प्रहर दिखाया और ये दिखा दिया कि ये लव में है, और एक सुंदर गाना हो गया। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, आप सुनील दत्त और साधना को वक्त फिल्म में देखें और ये लगता है कि अब ये लव अपने एपिटोम पे पहुंचा हुआ। यहाँ लव की शुरुआत ही एपिटोम से होती है, SMS से। तो काहे का इतना, इसको किसको फुर्सत है, किस लड़की को फुर्सत है कि उसका जो प्रेमी है वो शायर हो और उसके लिए गाना गाए। यतिन जी, आपने जो कहा कि रिंगटोन्स को देखे, मुझे याद आया कि एक राइटर थे, तो उनने कहानी जाके एक प्रोड्यूसर को सुनाई और प्रोड्यूसर उछल गया कहानी सुन के। उसने कहा कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे 2 दिन का टाइम चाहिए सोचने के लिए। तो बेचारा राइटर ने कहा कि आपको कहानी इतनी पसंद आई है तो सोचना क्या, आप मेरे को बताइए, मैं आपको जवाब देता हूँ। बोले मुझे ये सोचना है कि इस कहानी का प्रोमो कैसा बनेगा, अब ये बताइए। ये कहानी डिसाइड कर देते हैं कि प्रोमो कैसे बनेगा उसके बाद। और फिर जो म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, जब मैं असिस्टेंट था राज साहब के साथ जी, मैं 16 साल का था तो मैं असिस्टेंट बना, और पहली बार मैं म्यूज़िक सिटिंग भी गया उनके साथ। तो मेरे लिए बहुत बड़ा ये हुआ, क्योंकि वहाँ पर एक कमरे में, एक छोटे कमरे में राज साहब, शैलेंद्र जी, हसरत जी, शंकर जी, जयकिशन जी और मुकेश जी, मतलब ये सब स्टॉलवर्ड्स को देख के मतलब एक मेरे को लगा कि इट वॉज एन इमोशनल मोमेंट। और फिर जब गाना कंपोज करना शुरू किया उन्होंने, देखिए गाना जब म्यूज़िक डायरेक्टर कंपोज करके सुनाता है वो, तो उसमें डमी वर्ड्स हमेशा होते हैं ताकि वो ईजियर हो जाए समझने के लिए। जैसे लव स्टोरी में था मैं आई आजा, ये पंचम के डमी वर्ड्स है, लेकिन गाने में हमने फाइनली यूज़ किए थे। तो राज साहब के यहाँ जब म्यूज़िक की सेटिंग हो रही थी और जब ट्यून सुनाया गया था, तो जो शंकर जी ने ट्यून गा के सुनाया वो सिर्फ माँ बहन की गालियाँ थी। मतलब इतनी गंदी गालियाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुनी है जो मैंने वहाँ सुनी थी। और मैं देख रहा हूँ ये 5 आदमी, इनका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। ये लगे मैं कि जी वो माँ की ये को बदल के बहन की ये कर दो, तो मुझे लगा कि यार ये क्या है ये 5 आदमी। बट आई रियलाइज वन थिंग, वो गालियाँ वर नॉट गालियाँ फॉर देम, इट वॉज देयर स्टेपिंग स्टोन to decide what the words will be. So this is the way they were
composing the music. And आज के ज़माने जो म्यूज़िक है, जैसे यतिन जी का है कि जी मेरे को सोचना है कि ये गाना आज ख़त्म करूं क्योंकि मुझे चेन्नई जाके दूसरा गाना गाना है। सर वो दिन भी चले गए, क्योंकि आज सिंगर का ये है कि मुझे ये गाना अभी बैंड्रा में ख़त्म करके मुझे वर्सोवा जाके दूसरा गाना गाना है। दैट इज़ बिकम द डिफरेंस। आई हैव सीन अ टाइम व्हेन सिंगर्स यूज्ड टू कम फॉर रिहर्सल्स। जब कोई भी सिंगर हो, चाहे वो लता जी हो, कोई भी हो, वो रिहर्सल के आते थे और सबसे अहम सवाल वो पूछते थे सर कि ये फिल्म में ये गाना गा कौन रहा है, हु इज़ द एक्टर, अच्छा एक्टर का कैरेक्टर क्या है, तो गाना उसके हिसाब से वो गाते थे। आज तो वो है नहीं बिल्कुल, क्योंकि एक तो कैरेक्टर्स भी नहीं है, वो डेप्थ ही नहीं है, तो इट्स अ डाइंग आर्ट। आपने बताया बहुत सुंदर बात राहुल सर ने, जो लोग नहीं जानते हों, डमी वर्ड्स की तरह दो स्लैंग वर्ड्स, दो स्लैंग लाइंस दे दी जाती हैं, उस मीटर में आपको गाना फिट करना होता है। तो गुलजार साहब ने मुझे बताया कि एस डी बर्मन के पास सिर्फ 2 डमी लाइन थी जो सबको पकड़ाते थे। डमी लाइन क्या थी? बापू बापू जी बकरी का दूध पीता है। वो बंगाली थे तो बकरी को बकरी कहते थे। तो शैलेंद्र को ये गाना दिया गया कि, और गुलजार साहब वहाँ थे तो उन्होंने कहा कि बापू बापू जी बकरी का दूध पीता है। इस पर गाना कैसे होगा? गाना लिखा शैलेंद्र ने, जानू जानू री काहे खन के है तोरा कंगना। मीटर पे उसको रिप्लेस करते हुए इस तरह से गाने बनते थे। और तमाम सारे, कुछ लोग तो सिर्फ साउंड दे देते थे। कनु राय ती का वर्ड देते थे, ती करके वो पूरा नरेशन कर देते थे और फिर आपको उसमें गाना बनाना होता। कनु राय ने अनुभव में बहुत सुंदर गाने बनाए जो गीता दत्त ने गाए, मेरा दिल मेरा होता और तमाम सारे मशहूर गाने। तो जो सर कह रहे हैं, ये म्यूज़िक इंडस्ट्री में अतुल तिवारी जी सामने बैठे, उनके बहुत सारे अनुभव होंगे। गानों को लेकर के वो आत्मा मर गई और गाने अब ज़रूरी नहीं रहे। एक ज़माने में गाने से फिल्मों के पैसे निकलते थे और ये होता था कि कमर्शियल सक्सेस होती थी। बहुत सारी BC ग्रेड की फिल्मों के गाने आपको याद होंगे, जहरीली नागिन, उड़ता इंसान, इस टाइप के कुछ, खूनी खंजर, लेकिन गाने बहुत मशहूर होते थे। वो आपके जहन में है, फिल्म आपके जहन में नहीं है, इसलिए क्योंकि गानों की वजह से फिल्म चलती थी। सो यतीन्द्र जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, इंग्लिश में पूछ रही हूँ, आप हिंदी में जवाब दीजिए। योर एक्सप्लोरेशन ऑफ बेगम अख्तर's life and music is intriguing. How do you view the intricate relationship between music, poetry and storytelling in Begum Akhtar's artistry? And how might this unique fusion resonate with the themes that we are discussing today? Bollywood exploration of music, poetry and storytelling. बेगम अख्तर पहले एक्ट्रेस थी। अख्तरी बाई फैज़ाबादी के नाम से फिल्मों में काम किया और उनके लिए मेगाफोन रिकॉर्ड अख्तरी बाई फैज़ाबाद फिल्म स्टार के नाम से इश्तिहार छापता था। तो उस ज़माने में 40s में किसी प्लेबैक किसी सिंगर के लिए जो कॉटेसन है, जो तवाइफ परंपरा से आ रही है, वो फिल्म स्टार है, तो वो एक एक्स्ट्रा फेदर होता था उसके सर में। और बेगम साहिबा ने अपनी गायकी में जिस तरह से 4-5 घरानों की गायकी सीखी और उस्ताद अब्दुल वाहिद खान से सीखा, किराना घराने के, फिर लखनऊ में उन्होंने रमज़ान खान से सीखा। तो वो एक अवध और एक किराना, वो दोनों उनकी आवाज़ में बैठा हुआ है। फिर उनके शौहर इश्तियाक अहमद अब्बासी, जब उन्होंने बैरिस्टर साहब से शादी की, तो उनको ठुमरी दादरा से थोड़ा सा डेविएट करते उन्होंने बहुत अच्छी उर्दू पोइट्री की तालीम दिलाई और उनको बताया कि गालिब भी पढ़ो, दाग भी पढ़ो, मीर पढ़ो, मोमिन पढ़ो। तो जो उनके लास्ट फेज़ की सिंगिंग है, जिसके लिए वो बहुत मशहूर हुई, उनको गज़ल माइस्ट्रो माना गया। तो बेगम साहिबा का फिर वो एक बड़ा मुकाम बना और जिगर को गाया, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। तो मुझे लगता है कि समथिंग इज़ हैपनिंग। मैं बोर कर रहा हूँ तो फिनिश करें। बोलिए। नहीं, अगर आपको कुछ बोलना है तो आप जी। तो बेगम साहिबा कई तरह की चीज़ों से बनी थी और उसके लिए बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी। कोठा बनाया उन्होंने लखनऊ में। तो पुराना लखनऊ होता था, वहाँ एलीट क्लास नहीं जाता था क्योंकि बदनाम बस्ती में, बदनाम गलियों में जाना थोड़ा मुश्किल काम था।
बेगम अख्तर ने ये समझ लिया कि आने वाला जो नया कल्चर है वो हजरतगंज इलाके का है, हैवलॉक रोड के पास। तो उन्होंने अर्ली 50s में अपना कोठा हजरतगंज में जहूर बख्श चर्च के पास बनाया। एक औरत जो बिल्कुल जा करके एलीट क्लास में बैठ करके कोठा अपना खड़ा कर देती है, क्योंकि वहाँ शरीफ आदमी आ जाएगा। और आज जो हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ बाउंसर देखते हैं, बेगम साहिबा के यहाँ बाउंसर लगे रहते थे। एक हफ्ते तक एंट्री नहीं मिलती थी। एक हफ्ते के बाद जब ये पता लगता था कि ये ठीक ठाक कॉन्सर्ट है म्यूज़िक का, और वो कोई पेशगी रकम दे देता था, कुछ खाने के सामान, कुछ भी अच्छी गिफ्ट लेके देता था, तब उसको उनकी कोर्ट में एंट्री मिलती थी गाना सुनने के लिए। तो उन्होंने अपनी एक पर्सोना क्रिएट किया। वो एक दीवा की तरह थी, एक्ट्रेस रही, बड़े राजघरानों में जाकर उन्होंने गाया। उन्होंने बड़ौदा रियासत में और पटना में, दरभंगा में बहुत सारे परफॉर्मेंसेस किए। वो इतनी बड़ी उनकी शख्सियत का बस एक इल्हाम आप देखें कि सत्यजीत रे जैसा फिल्म मेकर जब जलसा घर बनाता है तो बेगम साहिबा को फिल्म में लेता है, और बंगाली फिल्म में अवध की ठुमरी गवाई जाती है, हिंदी में गवाई जाती है, बांग्ला सॉन्ग नहीं गवाते हैं, क्योंकि उस समय उनका डंका बज रहा था। और जितने भी AIR के नए रेडियो स्टेशंस खुल रहे थे 50s में 60s में जा कर के, सब के इनाग्रेशन कंसर्ट के लिए या तो सिद्धेश्वरी देवी और या बेगम अख्तर बुलाई जाती थी। तो वो एक दौर था जब उन्होंने अपने को गढ़ा। और मैं बेगम साहिबा की सबसे बड़ी हैसियत ये मानता हूँ कि उन्होंने सुगम संगीत को, गज़ल जैसी सिंगिंग को शास्त्रीय गायन की श्रेणी में ला दिया। संगीत नाटक एकेडमी को उस जॉनर को इस्टेब्लिश करना पड़ा कि ये भी हमारा परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक बड़ा, म्यूज़िक का एक अपना एक क्षेत्र है, और उसमें अवार्ड वगैरह शुरू करने पड़े। तो ये बेगम अख्तर की एक बड़ी हैसियत है। जी। Rahul sir, in your opinion, how does the inclusion of music impact the storytelling process in Bollywood films? Can you share examples from your own films? See, the time when music impacted the stories of the film. Can I just ask, I was told I have the panel till 1:30. When we are running out of time, you can take your last question, please. Thank you. So, today, of course, the songs, the dependence on songs has become less. Thank God, because the songs are not worth hearing also. So it's better that we are not tortured by hearing those so-called songs. But if I take my films, I think every film, like Love Story, had Dekha Maine Dekha Ek Sapna. It moved the story ahead. You know, that was the idea of having the song. In Betab, Jab Hum Jawa Honge, Jaane Kahan Honge, moved the story ahead. There was no song which stopped the story. In fact, even Arjun, which was more of an action film, that one song which Pancham did, Mamaya Kero Kero Kero, was something which had a progress in it. You know, it showed what the boys were all about, that the violence inside them, you know, because not getting jobs, was all coming out. So somehow we wanted, of course there were songs in that also which had not been there. And so this is one aspect, I think, which is missing. In between was missing. You had songs only for the sake of songs. Today you have songs which are relevant to the film, but they're not songs. I guess we have to coin another word for them, because I don't know what you call them. Because, you know, I really don't know. Do we call it noise, or do we call it, you know, we can't call it lyrics. That's blasphemous. Cacophony. Yeah. You can't. Tell me, आपने कितने गाने जो हैं, जो टीवी पे आते हैं, आप 2 बार कॉन्सर्ट सुनते हो और आपको याद रहते हैं? सर मैं तो बहुत ओल्ड फैशन हूँ, मैं तो 70s के बाद गाने ही नहीं सुनता। आप तो लकी आदमी है सर, क्योंकि जो गाने बजते हैं वो किस फिल्म के बजते हैं, वो मैं 2 बार देखता हूँ, 3 बार देखता हूँ, मुझे हमेशा 3 अलग अलग पिक्चर याद आती हैं। अच्छा, एक्टर कौन है जो गा रहे हैं वो भी नहीं पता लगता है, और गाने के वर्ड्स तो मेरे को समझ नहीं आते क्या है, कहाँ से जोड़ के कहाँ डाल देते हैं।
it's really become a mess. Of course, there are few people who are still concentrating on their songs, and I think a very big example here is today this film Gadar has become very popular. It's a huge hit. मगर गदर का गाना जो 2001 में रिलीज हुई थी और वो गाना जो है वो आज उससे ज़्यादा पॉपुलर हो गया. So somewhere, हाँ जी मैं निकला गया. So somewhere I think that melody and the words, it was done by Bakshi ji, I think that has worked because ये गाना सिर्फ अभी लोग नहीं गा रहे, it's being played in discotheques also. No, which is the latest, I'm sure ringtune will be running इनकी. So this song is really taking, and I hope music catches on because it's very sad that music doesn't carry on. It will be great fun hearing good songs and good lyrics. And the people, sir, at that time, the people are not there. When I did Betab, we were at a sitting and Pancham sang a tune and Bakshi ji said, Anand Bakshi said, he said, give me a cup of tea. तो जब तक चाय आ रही थी तो उन्होंने कहा कि मुखड़ा लिख रहे पंचम. मैंने मुखड़ा लिख दिया. This happened in 10 minutes. तो मुखड़ा उन्होंने सुना, what's this? जब हम जहाँ होंगे जाने का होंगे लेकिन जहाँ होंगे फरियाद करेंगे तुझे याद करेंगे. It was very good. We were all very appreciative. तो मेरे को बख्शी ने पूछा कि राहुल अंतरे कितने चाहिए. ये नहीं, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी 3 अंतरे चाहिए मुझे गाने के लिए और एक अंतरा चाहिए जब शमी जी लड़की को ले जा रहे हैं तो बैकग्राउंड में एक अंतरा बजेगा. तो बोले बेटा काम कर, कल सुबह घर पर आ जा, मैं घर पे लिख के दे देता हूँ. आप हैरान रहेंगे, मैं उनके घर पे गया सुबह तो इतने कागज़ लेके बैठे हुए थे. तो मैंने कहा बख्शी जी वो गाने, तो उन्होंने कहा बेटा देख ये 55 मैंने अंतरे लिखे, 55 अंतरे लिखे हैं और मेरे अंतरे ऐसे हैं कि कोई भी लाइन 2 लाइन किसी और से जोड़ दो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देयर ऑल विल हैव अ सेम्बलेंस ऑफ सैनिटी. और जो तुम चाहते हो लड़का गाए वो लड़का गाए, जो चाहते हो लड़की गाए वो लड़की गाए. नो दिस इज यू नो समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल. और उन्होंने कहा वो जो गाना बैकग्राउंड में चाहिए तुम इन अंतरों को देख के डिसाइड कर लो कौन सी लाइन तो गानी है. तो आजकल कौन है ये सब करते हैं. एक बहुत सुंदर छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. मदर इंडिया, महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया, शकील बदायूनी. पूरी फिल्म का नरेशन गानों पे बढ़ता है. आप शुरू में जब वो विदा होती है, पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली, कि वो गरीब है और उसका पूरा एक नरेशन है. फिर दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा. देन वो जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के, जब लोग पलायन करते हैं गांव से. फिर जब वो संघर्ष करती है तो चुनरिया खटती जाए रे. और जब अपने लड़के को लास्ट पे मारती है उसके पहले वो मेरे लाल आजा. पूरा गाना का जो एक पूरा सेटअप है, आपको मदर इंडिया से अगर गानों को एक के बाद एक सेट कर ले तो पूरी फिल्म खुल जाती है आपके आगे. जी ऐसा काम अब नहीं होता. जी थैंक यू. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.